Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again and we are continuing with the chota problems based on accounting for not-for-profit organization. The past few lectures have purely concentrated on the concept of subscription and the different possibilities and the varieties and the permutations and combinations जिसमें सब्सक्रिप्शन आपको पूछा जा सकता है. आज भी उसी कैटेगरी का एक प्रॉब्लम है. कभी कभी लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है क्योंकि वो बेस्ड होता है पूरे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर, और कभी कभी काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल रहता है. आज होगा शॉर्ट एंड सिंपल. डू इट योरसेल्फ करके एक कैटेगरी है. अगेन पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या होता है आपके टेक्स्ट बुक का, डेफिनेटली वो दिया गया है टाइटल ऑफ द वीडियो के अंदर. ओके, नेवरथलेस आई ऑलवेज शो यू व्हाट इज टू बी डन. सो यू शुड हैव इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी. उसके अंदर जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है RTNL and ALLA for subscription, please write and keep, and also very importantly a ledger for subscription. That is the main purpose of my training for the past 4-5 lectures, and I think a little bit more than that, कि ये सब्सक्रिप्शन का जो लेजर है वो हमको सीखना और मुझे आपको पढ़ाना है. ओके, बैलेंस शीट की ज़रूरत आज के क्वेश्चन के लिए नहीं है, नेक्स्ट टाइम के लेक्चर के लिए ज़रूरत ज़रूर होगी. अगर आप ऊपर देखो तो आपको क्वेश्चन नज़र आएगा, हम पढ़ लेते हैं. ड्यूरिंग द ईयर 14-15, करंट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, तो ये इतना ही पढ़ के एटलीस्ट आपका करंट ईयर 14-15, नेक्स्ट ईयर 15-16 एंड लास्ट ईयर 13-14 क्लैरिफाई हो जाना चाहिए. एंड लिख लो, क्योंकि इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर देर आर ऑलवेज अ लॉट मोर confusions that keep on happening. Okay, तो भाई क्या हुआ? During the year 14-15, subscription received by a sports club were 80,000. Okay, these included 3,000 for the year 13-14 last year and 6,000 for the year 15-16 next year. On March 31st 2015, that means the end of the current year, the amount of subscription due but not received was 12,000. current year का 12,000 आपको नहीं मिला. Question: calculate the amount of subscription to be shown in the income and expenditure account as income from subscription, even though the first line says 80,000 you received. Till now, after around 30 lectures of this chapter, आपको इतना तो पता होगा, भले ही हाथ में 80,000 आ गया,
बट ये कोई गारंटी नहीं है कि वो 80,000 अपना इनकम है। तो इनकम कितना है, वेल उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे चुटकी बजा के तो आता नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, कितना आपको सब्सक्रिप्शन मिला है, जो मैं मेरा कर्सर सही हो जाए तो आपको बता दूंगा, 80,000। हाँ, तो ये मेरे पीछे लेजर के क्रेडिट में आता है 80,000। इसमें से पिछले साल का आपको कितना मिला, क्वेश्चन वेरी क्लियरली स्टेटेड 3,000। इट वॉज रिसीवेबल लास्ट ईयर, तो इन द लेजर इट इज रिसीवेबल फॉर लास्ट ईयर 3,000, एसेट का ओपनिंग 3,000। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको कितना मिला, वेल वो भी क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है, डू इट योर सेल्फ में 6,000। दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो it received in advance for the next year 6,000। लास्ट ईयर में कोई एडवांस नहीं मिला था, करंट ईयर में एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर का। एंड देन देयर वाज अ लाइन, लेट मी शो इट टू यू, अबाउट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2015, करंट ईयर का एंड, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव was 12,000। so for the current year the receivable is 12,000। again, two places where you write it are receivable for the current year, and secondly just besides me receivable for the current year। then that's it, क्वेश्चन में और कुछ है नहीं और मुझे कुछ लंबा खींचना नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े and if the need is then I will obviously give you the extra explanation but not required। very simple, इसको आप सॉल्व करो। ओके, 80 + 12 वो तो 92 हो गया, माइनस 9,000, टेक्निकली तो 9,000 ही माइनस करना है। द आंसर, द इनकम विच यू हैव टू राइट इन द एज सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर 83,000। एंड द सेम थिंग इफ यू डू इट इन लेजर फॉर्मेट, 80 + 12 तो वो 92 आता है, डेबिट 92 माइनस 9, सेम आंसर 80। यू कांट हैव अ डिफरेंट आंसर, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि हम लोग सिर्फ ऊपर हमने वर्टिकल तरीके में किया, लेजर में हम हॉरिजॉन्टल में करते, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। बट द आंसर दैट इज द इनकम, यू कांट से मैंने वहाँ से देखा मुझे तो दूसरा ही इनकम नज़र आया, यहाँ से देखा तो मुझे दूसरा, नहीं भाई ऐसा होता नहीं है। कहाँ से भी देखो आपका इनकम सेम रहता है, कोई भी नज़रिए से देखो योर इनकम विल रिमेन द सेम। ओके, दैट्स प्रिटी मच इट, अ वेरी वेरी शॉर्ट एंड क्यूट लेक्चर। इतने में ये हो गया। I will meet you once again and one last time we will concentrate on the do it yourself का question number 3, the next one in the series। okay, that's a little bit more टेढ़ा मेढ़ा here and there। question में कभी कभी जो years दिए गए हैं ना उसमें गड़बड़ होता है, तो मैंने वो years को rectify कर लिया है और जो question मैंने पहले solve किया था उसमें आपको rectified year ही नज़र आएगा। ओके, तो जो PDF आपको एंड में टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा, उसमें जो रेक्टिफिकेशन है वो डेफिनेटली नज़र आ जाएगा। ओके, दिस इज़ इट फॉर मी फॉर टुडे। इट्स टाइम दैट आई टेल यू कि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सेकेंडली सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट, प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू हैव नॉट, शेयर द वीडियोज़ नॉट जस्ट फॉर टुडे बट फॉर फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर ये वीडियो आपका कुछ भला करता है तो दूसरों का भी भला डेफिनेटली हो जाएगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली उसको लिख सकते हो, कोई वो कमेंट बॉक्स का दरवाज़ा बंद तो होता नहीं है। विल डू आवर बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके उसका जवाब आपको दिया जाए, और उसके लिए अगर कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो वो भी आपको दिया जाएगा। टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखना, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, सभी का, सभी परिवार वालों का आप ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।